जातीय जनगणना पर फैसले के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही, सीधा रुख करते हैं। एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिजाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि डिजाइन बहुत जरूरी है। क्योंकि दो एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिजाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिजाइन है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है। और हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। हमने एक और चीज कही थी, कांग्रेस पार्टी ने रेज की थी, मैनिफेस्टो में भी था, आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) इज रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कानून है, ऑलरेडी कानून है, और हम चाहते हैं एकदम इस कानून को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार इंप्लीमेंट करना शुरू करे। सेंसस को डिले किया है और अपोज किया था, हम इसको वेलकम करते हैं, ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा। मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताई जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा, बजट में इसका पैसा आना चाहिए, अभी बजट में पैसा नहीं है, और फिर जो डेवलपमेंटल विजन है वो हमारे सामने प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, अंग्रेजी में बोल देता हूं। कास्ट सेंसस we have been fighting now for some time. Government has opposed for some reason. We don't understand what that reason is. They have suddenly decided to do it. We welcome that. We are happy that they have done the caste census. Telangana is a model state for the caste census. There are two caste censuses in front of us. One is Telangana, the other is Bihar. They are completely different caste censuses. The Telangana caste census, the questions have been developed by a process of consultation, not a closed process, open process, by asking the stakeholders what are the type of questions, and it's been a very detailed, very granular exercise. We would like the national census to follow some of the ideas of the Telangana census, and we are more than happy to help the government develop the national census on similar lines. We've had two other issues that we have discussed which are also central, which is the 50% cap on reservations. Now this is becoming an impediment. This is becoming an impediment to development, to progress of our country, and to the progress of backward castes, Dalits and Adivasis. And we want this 50% barrier to be eliminated and broken. We have stated that. We have achieved, we have put enough pressure on the government to get the caste census done. We want a date by when it's done. We are going to put pressure on the government to make sure that 50% cap is destroyed. And after that, there is a third thing, which is the Article 15(5), which is reservation in private educational institutions. It is already a law. We want that law to be implemented as soon as possible. So that is broadly the structure. We see the caste census as a new paradigm of development. And we want to go beyond the caste census. We want to understand what is the participation of 90% of our population in the power structure of our country, where are they participating effectively, and where are they not participating, and we want to give them participation and access to power.
So we are absolutely convinced in the Congress party that the caste census is a first step of a completely new development paradigm in the country, and we are going to push this paradigm through one way or the other. It doesn't matter what the BJP thinks. We have shown that we can pressure the BJP into doing the caste census. We are going to show you that we are going to pressure the BJP into doing 15/5 and also removing the 50% cap. I think every Congress member, every Congress worker, every single person who has fought for the caste census, and there are millions of people, activists from the backward communities, Dalits, Adivasis, I'm very proud of what you have done. This would not be possible without the effort, without the hard work that you have done. It has been a sustained campaign that we have run, and I'm very proud of every single person who has helped us in this campaign. Thank you. So you said that the government was opposed to this and suddenly decided to take this step. Do you think that this decision has been taken in light of the upcoming Bihar polls? No, I don't think so. I don't think that's why this decision has been taken in a hurry. I don't need to comment on whether they took it, when they took it, how they took it. Now they have taken it. We are happy they've taken it. Now this needs to be taken forward. सर, प्रधानमंत्री बार बार ये कहते थे कि ये 4 जातियां होती हैं सिर्फ देश में। अब अचानक से फैसला हुआ, तो क्या लगता है कि आपको जो विपक्ष ने और आप लोगों ने दबाव बनाया, उस दबाव के कारण? ये सिर्फ हमने दबाव नहीं डाला, ये सिर्फ दबाव नहीं डाला है हमने, ये हमने ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत गहराई से कैंपेन चलाया है, ग्रासरूट लेवल पे कैंपेन चलाया है, और महीनों से हम ये कैंपेन चला रहे हैं और इस कैंपेन का असर पड़ा है, इफेक्ट आया है, और इसीलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। बट कास्ट सेंसस जो मैंने आपसे बोला, ये दरवाजा खोलने का तरीका है, उसके बाद रियल विकास का काम शुरू होगा। एक बार हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी तो फिर हम उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम एक्शन ले पाएंगे। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। तेलंगाना के कास्ट सेंसस में से इंफॉर्मेशन किस ग्रैन्युलैरिटी की आ रही है और किस टाइप की इंफॉर्मेशन आ रही है। तो सरकार द्वारा लिए गए जातीय जनगणना के फैसले के बाद कांग्रेस की ओर से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। राहुल गांधी की ओर से बड़ा बयान दिया गया, कहा कि जातीय जनगणना एक पहला कदम है, सरकार जनगणना की टाइमलाइन बताए। कांग्रेस का जो है पूरा समर्थन सरकार के साथ है। कहा कि सरकार ने हमारे विजन को स्वीकार किया है और अब इसे आगे ले जाने की जरूरत है। हालांकि इस दौरान जो है उनसे एक सवाल भी पूछा गया कि क्या बिहार चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है, जिस पर राहुल गांधी जो है इनकार करते हुए नजर आए हैं। और अब नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल आएंगे। शिमला में राष्ट्रपति के दौरे को लेकर हुई बैठक। 5 से 9 मई तक शिमला में रहेंगे राष्ट्रपति। पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश। शिमला में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सुखू सरकार को घेरा। कांग्रेस के नेताओं का व्यवहार पाकिस्तान जैसा, कहा कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार और जगत सिंह नेगी का मांगा इस्तीफा। जयराम ठाकुर के बयान को लेकर सीएम सुखू ने किया पलटवार। बोले देश दुखी था, वो नाच रहे थे और अब राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। जयराम ठाकुर को मीडिया फीवर हो गया है। आप लोगों का काम है। जातीय जनगणना के फैसले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की प्रतिक्रिया। कहा कि ऐतिहासिक फैसले के लिए पीएम मोदी को बधाई। कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जातीय जनगणना का विरोध किया। शिमला में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के सीएम सुखू ने ली बैठक। एचपीटीडीसी बैठक में बोले सीएम सुखू, एचपीडीटीसी को पहली बार हुआ 100 करोड़ रुपए का फायदा। कैबिनेट मंत्री आरएस बाली का बड़ा ऐलान। शिमला से धर्मशाला में शिफ्ट होगा एचपीटीडीसी का हेड ऑफिस।
पर्यटन निगम का मुख्यालय भी होगा शिफ्ट। और अब रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ अहम खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल आएंगी। 5 से 9 मई तक हिमाचल के शिमला के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति निवास दी रिट्रीट में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रुकेंगी। राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर जो है बैठक की गई। संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ जो है सीएम सुखू ने बैठक की और तैयारियों को लेकर निर्देश दिए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 से 9 मई तक शिमला में ही जो है रहने वाली हैं और इस प्रस्तावित दौरे के दौरान राष्ट्रपति शिमला स्थित राष्ट्रपति निवास दी रिट्रीट में रुकेंगी। शिमला डीसी अनुपम कश्यप ने राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर जो है तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने पहली बार 100 करोड़ रुपए से अधिक का ऐतिहासिक मुनाफा दर्ज किया है, जो कि वर्तमान राज्य सरकार की ओर से किए गए ईमानदार प्रयासों का परिणाम है। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने HPTDC और पर्यटन विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने जो है राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से चुनौतियों का सामना करने के बावजूद पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में 78 करोड़ रुपए से वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में 107 करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार हासिल किया है। और टूरिज्म के बोर्ड में ADB के प्रोजेक्ट को स्पीड अप करने के लिए निर्णय लिया गया। और जो कुछ एक टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के होटल है, जैसे परमाणु का होटल है जो बंद पड़ा है, उसको आउटसोर्स पर देने की हमने बात की है कि इसको आउटसोर्स पर दे दिया जाए, ताकि टूरिज्म ने जो प्रॉफिट पिछले 2 साल से जो कमाया है, पहले ये 97 करोड़ होता था, फिर 103 करोड़ हुआ पिछले साल, और 78 से 103 करोड़ होता था। तो ये सब बैठकों में हमने चर्चा करके 109 करोड़ कमाया और पहली बार टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रॉफिट में आया है। और ये इसके लिए हमारे जो साथी है वाली जी इस पर मेहनत कर रहे हैं। और इन्होंने एक और ऐतिहासिक फैसला किया कि जो परचेजिंग होगी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, वो थ्रू फूड एंड सिविल सप्लाई होगी। इस दृष्टिकोण से टूरिज्म की बैठक थी कॉर्पोरेशन की, फिर उसके बाद हमारी हेलीपोर्ट्स कहाँ बनने उसके संदर्भ में बैठक थी। और इस दृष्टिकोण से एयरपोर्ट का जो एक्सपेंशन था, उसमें तीनों एयरपोर्ट के एक्सपेंशन की बात पर चर्चा हुई, क्योंकि हमारा जो सरकार का जो प्राइमरी ट्रस्ट है वो कुल्लू, शिमला और कांगड़ा के एयरपोर्ट को बड़ा करने में, कांगड़ा की तो लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन शिमला के एयरपोर्ट को अगर टूरिज्म को और डेवलप करना तो कैसे आगे बढ़ा जाए, इस दृष्टि से चर्चा की। और उसका कार्य हमने शुरू किया है कि जो प्रोजेक्ट में बनने हैं, जैसे नगर कैसल का मैंने फाउंडेशन स्टोन रख दिया, बाबा बालकनाथ का भी फाउंडेशन स्टोन रखने जाएंगे, उस पर काम तीव्र गति से हो रहा है। आगे बढ़ते खबर शिमला से है। कैबिनेट मंत्री RS सुबाली की ओर से बड़ा ऐलान किया गया। शिमला से धर्मशाला शिफ्ट होगा HPTDC का हेड ऑफिस। पर्यटन निगम का मुख्यालय भी शिफ्ट होगा। जिला कांगड़ा में स्थानांतरित किया जाएगा HPTDC का ऑफिस और अध्यक्ष RS सुबाली ने बैठक में फैसला लिया है। हिमाचल सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के हेड ऑफिस को शिमला से कांगड़ा शिफ्ट करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। 1972 से जो है HPTDC का हेड ऑफिस किराए के भवन में चल रहा था। वर्तमान में इस दफ्तर में लगभग 75 कर्मचारी कार्यरत हैं। शिमला शहर में बढ़ रहे बोझ को कम करने के मकसद से ये फैसला लिया गया है। तो जातीय जनगणना के फैसलों पर जो है अब लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का भी बयान आया, कहा कि ऐतिहासिक फैसले के लिए पीएम मोदी को बधाई। देश के सर्वांगीण हितों और मूल्य के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। और कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जातीय जनगणना का विरोध किया है। कांग्रेस ने सिर्फ वोट की राजनीति की है, राजीव बिंदल कहते हुए नजर आए। जातिगत जनगणना के संबंध में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने जो निर्णय लिया है, हम उसका कोटि कोटि स्वागत करते हैं। श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी का, भाई अमित शाह जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने यह सामयिक निर्णय लेकर के देश को एक नई दिशा और नई राहत की ओर अग्रसर किया है। जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस पार्टी सदैव केवल वोट की राजनीति करती आई है। लंबे समय तक देश में लगभग 60 वर्षों तक कांग्रेस ने सत्ता में रह करके
और जातिगत विभाजन के आधार के ऊपर अपनी सत्ता को बचा करके रखा। और वहीं राहुल गांधी पहलगाम आतंकी हमले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। आप उनको शहीद का दर्जा दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, ये मैं कहना चाहता था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कई मुद्दों को लेकर बोलते हुए नजर आए हैं और साथ ही पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो मरे हैं उन्हें शहीद का दर्जा देना चाहिए। Okay? It is pretty clear who is responsible for this. The people who are responsible for this must pay a price. The Prime Minister has to take action, right? And the action has to be clear and it has to be strong, without any confusion.